मैम स्ट्रेट है, मैडम स्ट्रेट। जाने दो भाई। पीछे हो ना इतना। सॉरी सर। शबाना जी यहाँ पे। मैम इधर देखिए। मैडम यहाँ पीछे के चक्कर में पीछे ही चला गया। तो आएगी नहीं। आ जाओ। विनोद रिया को नहीं कर रिया कौन? वो तो आएगी नहीं। आएगी। चलो पीछे आ जाओ। अरे जरा सामने आएगा, जरा 1 मिनट सामने हो, 1 मिनट सामने हो। अरे यहाँ पर आएगा तो लेना ना यार, क्या हो रहा है? विनोद पीछे आ जाओ। अरे इधर क्यों जा रहे हो यार? आएंगे वो यहाँ पर यार। कौन बोल रहा है सर? चलो बैकड्रॉप में चलो। बैकड्रॉप पे लाइट देना। पीछे जाता प्लीज। अनिल सर 1 मिनट दादा, मैं थोड़ा आगे मैं नीचे आगे नीचे आ जा। अनिल सर यहाँ पे। आप पीछे आओ यार, पुल नहीं मिल रहा है। भाई इनका तुम्हारा सूट करेगा पीछे। अनिल सर यहाँ पे देखिए ना एक बार। थोड़ा सा कैमरा अनिल सर आपका फोटो। अनिल सर एक सोलो संजय सर दोनों का। अनिल सर इधर से यहाँ से सर। अनिल सर इधर से सेंटर में सर यहाँ पे सर। अनिल सर एक सोलो। अनिल सर यहाँ पे। अनिल सर यहाँ पे। अनिल जी यहाँ पे। अनिल सर सामने।
today. You don't want to miss this. आप आए थे 4:30 बजे, ये भी मुझे पता है. इंतज़ार किया है आपने, ये भी मुझे पता है. But I will, trust me when I say this. It's going to be something that you've never seen before. अब ये पेशा है, लोग अक्सर ये कहते हैं you've never seen this before. But when I say this, कुछ नाम लेना चाहूँगी स्टेज पर, क्योंकि ये कहानी मिर्ज़ा साहिबान की. इस कहानी को किसने नहीं सुना है, सब जानते हैं. लेकिन एक इंसान ने इस कहानी को पहली बार जब अपने कॉलेज के डेज में देखा था स्टेज पर, उन्होंने After all his political motivation and youth thrillers, आखिरकार what makes a filmmaker want to tell a love story? And when you do tell a love story, it happened long ago. The first time when we saw the cuties in QSQT. Thank you. जावेद साहब भी हैं यहाँ पर, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आप दोनों को एक ही रूम में मैं देख रही हूँ आज पहली बार. उन्होंने एक कहानी आपके बारे में बताई कि आप जैसा मेमोरी किसी के पास नहीं है. जावेद अख्तर हमारे साथ है. प्लीज गिव अ ह्यूज हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन. Tanvi Azmi ji, you joined us today. It's a very special and a personal film for you too. Thank you for joining us today. A big hand for her as well. Thank you. Shabana ji हमारे साथ हैं. A big hand for her. Shabana Azmi, ladies and gentlemen. Anil Kapoor is here, a big hand! And of course, the lovely sister today, the doting sister, if I may, Sonam Kapoor is here joining us today, ladies and gentlemen. बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इंट्रोस कराने हैं, लेकिन ladies and gentlemen, can I please introduce you? एक डायरेक्टर का दिल तब धड़कता है जब ये आवाज़ जो है बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर पहली बार ये स्क्रीन पर दिखती है. And the gentlemen behind the background score are Chubby and Parikh. Can I please request you to give them equal amount of love, please? Thank you. And joining Chubby Parikh on this stage today is a legend. If you think what I'm wearing is bling, wait till he comes on this stage. Daleen Mehndi, ladies and gentlemen, give a big hand. Gentlemen, take it away. Good 36 साल पहले, around 36 years ago, I was in college and there was a cultural festival. वहाँ पे मैंने मिर्ज़ा साहिबा का play, I knew it, you can't show. So I saw the play for the first time, 36 years ago. And college का ज़माना था, एक love story थी, legendary love story. At the end of the play, the director comes on stage and asks all of us like this, कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? It was quite a question. Everybody raised their hands. I didn't have the courage to raise my hand. And that question got me. Why do we hurt them the most, whom we love the most? हम उसी को कि वो सबसे ज़्यादा सताते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं. ऐसा होता क्यों है प्यार में? What is this love? It's so illogical. तो ये सारे सवाल घूमते रहे. साहिबा and Mirza, for I'm assuming everybody knows the story, but for those who don't, they were soulmates from their childhood. They grew up and then they found themselves on opposite sides in warring families, thirsty for each other's blood. But they were in love. Their souls could not be disconnected. Everybody tried so, but it didn't happen. And when the time came, they ran away from the world. They galloped on their horse, beautiful black horse called Bucky. 3 days, 4 nights, finally there was safety. एक और वैली की बात थी, बस उसको क्रॉस करना था उनको, बट अंधेरा हो चला था. They took rest under a tree and they fell asleep. But what they didn't know and what they were fearing the most, there was a posse of Sahiba's brother
and some 100 horses looking for them. उनके खून के प्यासे, उनके पीछे. In the morning, Bucky shouted a warning signal. She went up in the sky and warned her master, Mircea, to wake up. Mircea woke up and the brothers had surrounded. There were 100 horses, 100 bows and arrows. He went for his bow, he picked up the arrows, but the arrows were broken. All the arrows were broken. And he looked at Saiba and he said, why? Why did you do it? And then the brothers of the arrow, Saiba's brothers, shot the arrows. Mirza, he bled to death. And he had that question in his eyes. And I had this question in my heart for 35 years. Somewhere deep down, it was there. Life is funny. You find yourself in a director's chair and then you want to tell stories. Where do you get stories out of? You get them out of your own experiences. So I called up Gulzar Bhai and I said, Gulzar Bhai, chai. He said, Aaja. He's my neighbor. I went to his house and I said, Gulzar Bhai, Saiba ne तीर क्यों तोड़े थे? So he says, Bachchu, he calls me Bachchu. Bachchu, वो तो तुम साइबा से जाके पूछो. मैं कहा सर मिल नहीं रही है, बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ. अच्छा, ठीक है चलो हाथ पकड़ते हैं, ढूंढते हैं साइबा को. जब मिल जाएंगी उसी से पूछ लेंगे तुमने तीर क्यों तोड़े. Ladies and gentlemen, my life comes a full circle to take the writing of such a legend and make it my own. Gulzar Bhai. शुक्रिया. ईद मुबारक आप सबको. कम होता है कि ईद पर इस तरह का तोहफा मिले जो राकेश आज दे रहे हैं हम सबको. राकेश की बात मिर्ज़ा करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, तो वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था. मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के बताइए तीर क्यों तोड़े. अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं. पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए. तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए. सो आई सेड चलो साहिबा से मिलते हैं चल के. तो साहिबा से पूछेंगे. राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफर में बड़ा मजा आया है. बहुत खूबसूरत है. और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं. अब तब बड़ी दिक्कत होती है. तो मैं अब ये कि स्कूल से ही मुसीबत थी मेरे लिए. इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा. जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, ज्योग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछिए क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था. पहाड़े सुना दूंगा 1 से लेकर 2 से लेकर 6 तक 10 तक. लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा. और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे. और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जाके मिला साहिबा से मिला. साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इश्क में तो ये होता है और ऐसा ही होता है. चोट कहीं लगती है जाकर और जख्म कहीं पर होता है. इश्क में ऐसा होता है. साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूँ
तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी। तो जावेद साहब, मैं वो जरा सी कहानी सुना दूं, इजाजत हो? अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी। अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी जरूरी है, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो दो किनारे दो शख्स हो जाते हैं, दो शख्सियतें हो जाती हैं, या दो इमोशन या दो जज्बे हो जाते हैं, और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी। एक नदी थी, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। हाँ, एक नदी थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी। अब ये कहानी है उसके सारे की। शोर के खास तौर पे हमारे तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई, और कहाँ से। थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अस सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्टर हर्षवर्धन। व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम, एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। तनवीर जी से कहूँ मैं कि मैं क्या पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ, राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुलीवाला, और फिर आपके साथ और साहबजादी आपकी, उसके साथ काम किया। इसी कहानी में से ही किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे। एक नदी थी, तोड़ती तो सैलाब, एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसकी जंजीरों में रहती थी। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी। आगे कहानी आपको बड़े जोरों से आती है, और मेरे जो पीछे हिचकी आ रही थी, वहां बैठा हुआ था अभी, तो राकेश ने कहा कि एक गिलास पानी दे दी। मैं बता, मैं कह ये हिचकी से गिलास पानी से नहीं उतरने वाली है। अब जब तक मैं किसी के गले ही ना मिल लूँ तो कहाँ से हिचकी आएगी। ठीक है, जो याद कर रहे हैं उनके गले लगे। ये एक ऐसी ही जगह है इस कहानी में भी कि जहाँ किसी को हिचकी आती है, लेकिन उस हिचकी का जिक्र गाँव के लोग करते हैं। वहाँ एक लोहारों की गली है, जो दास्तानें सुनाया करती है। इस फॉर्म में, इस कहानी में, स्क्रीन प्ले में एक वो एक अंदाज नया है। देखिएगा कि वो गली जहाँ लोहार काम करते हैं, सारे हर दहकती रहती है, लाल सुर्ख माहौल रहता है वहाँ। जब आग में लोहा तपता है और जब आग बिखरती है तो ऐसे ही लगता है। तो तमाम लोग जब गाते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो मिर्जा साहिबा की कहानी भी सुना रहे हैं, और उस वक्त लग रहा था कि जैसे वक्त ने मुट्ठी खोली है और ये लम्हों की चिंगारियाँ हैं जो बहती रहती हैं, जो चलती रहती हैं, और उन लोग कहानी कहते हैं।
और उसी में बस ये हिचकी लोहारों की गली के किरदार हैं जो बार बार सामने आते हैं और कहानियाँ गाते हुए, कहानी सुनाते हुए आगे चलते हैं। उसमें जिस हिचकी का जिक्र ये लोग करते हैं कहानी सुनाते हुए, वो कुछ ऐसी है और वो फोक है, वहाँ में लोग गीत का जो रंग है कि आवेरे हिचकी निद्रा में किसने याद की हो रे, जगाए सारी रहना रे। अब नींद में भी हिचकी आई है। निद्रा में किसने याद की हो रे, जगाए सारी रहना रे। पिया जगावे, जिया जगावे और दिया जगावे रे। जो चीजें जगाए रखती हैं, पिया जगावे, जिया जगावे, दिया जगावे रे। आवे रे हिचकी, संदेशा आयो ना चिट्ठियां भेजाएं, संदेशा आयो ना चिट्ठियां भेजाएं, सावन में सूखे नैना रे। सूखा क्या क्या, सावन में सूखे नैना रे। तलैया सूखी कीकर सूखा, भीतर सूखा रे। तलैया सूखी कीकर सूखा, भीतर सूखा रे। आवे रे हिचकी। अब ये बोल सूखे से ही बोल रहे हैं, सूखी चीजें, लेकिन किसी जादूगर के हाथ में, किसी मदारी जैसे जादूगर के, जिसके पास एक गिटार भी हो, जिसके पास म्यूजिक हो, और जरा डुगडुगी बजाइए तो देखिए कि इसकी आवाज किस तरह से आती है। यही सूखी चीजों की। And 3 months later, it played out in modern India. सवाल ये था, क्या आज के ज़माने में भी वैसा प्यार होता है जैसा हमने सुना था, सोचा करते थे? क्या आज के ज़माने में भी लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फराज, हीर रांझा होते हैं? क्या आज भी वही प्यार का एहसास है? क्या आज भी अगर हम ढूंढने निकलें तो हमें मिर्ज़ा और साहिबा मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं। 3 गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और एक मैं। कैसे टेलर प्ले होगा? टेलर प्ले होगा। पहले दिन से विश्वास दिखाया हमारे म्यूजिक पार्टनर टी सीरीज ने। बिग हैंड फॉर टी सीरीज प्लीज। अब मैं 3 अलग-अलग किस्म के प्रोड्यूसर्स को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी। पहले तो ऑफ कोर्स विनोद भानुशाली साहब फ्रॉम टी सीरीज, थैंक यू so much. Could you please join us on the stage? Thank you. Secondly, I'd like to call upon Bharti ji, of course, the producer of the film and of course the editor of Mirzia as well. Bharti, could I please have you to share the stage with us? How are you, sir? And my favorite producer, the man who produced the wonderful man on the screen, Anil Kapoor! Please! मैं थोड़ी ना आपको छोड़ूंगी. Come on. You have to join us on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Janas, Anil Kapoor. Okay, we have to ask all 3 of you questions, so I'm going to ask you to kindly join me on the stage. Vinodji, please. A few words on the music.
so much, Gulzar Saab, for wonderful lyrics. And from T-Series, I would just say one thing, that today in this hall, some 500 or 1,000 people have heard the songs. Tomorrow the world will hear the same, and it is super. Thank you, Vinod Bhanushali sir, of course, representing T-Series. Bharti ji, I'd like you to say a few words, please. Just like to say thank you to everybody. Thank you to Vinod. It's been a pillar of strength for the whole unit, and I think we should hear more from you. Thank you so much. AK, hey, let's hear it for them, guys, come on. मुझे फंसा दिया। आज आप रो नहीं सकते। आइफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था, it was a very emotional moment at आइफा all the way in Madrid. आइफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था। Lying. नहीं, absolutely नहीं, बिल्कुल नहीं। Well, of course, well, I think life has come full circle for me. My father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mother who's here, my brother, or both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's a great pride that today my son Harsh Vardhan Kapoor, is over here. All I can say is, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about star sons, but I can assure you, Harsh, and all of you, star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, but don't expect anything like me from him, absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, that Rakesh, Om Prakash Mehra, spotted him, groomed him, and the entire team, have made him Mirzia today, and I can see Mirzia on screen today. I just want to say that all of you here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Dileer Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera haq banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business, never compromised, never made, no scams, never made money, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you all. Thank you. Rizal. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinodji. Thank you so much for joining us. Could I, at this point, please request the cast and crew of Mirzia to kindly join us on the stage for a photo opportunity. This is a photo opportunity for our friends from the press. This is where you can get your cameras ready. After which we will have the press conference, so in case you want to realign yourselves, please do that. It's been a very emotional day, as I said. Apni picture hai, ghar ki picture hai.
बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? ये सवाल एक्चुअली यार लाइट प्रॉपर नहीं है यार। आजकल का जो सिनेमा और उसका जो ग्रामर है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर 2 मिनट है तो। क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया है, एक्टिंग थिएटर से आया है, राइटिंग तो राइटिंग से, संगीत की दुनिया से, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया है। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गया है तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1 2 3 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठी हैं बट आपको याद अपने बचपन के आ गई, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, द्वंद्व होता है कि ये चीज़, क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार जी या मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं, बहुत मटेरियल होता है हमारे पास। और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास जब वो पहुँचती है बात तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती हैं उन्हें और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। Thank you for your question. Hi, this is on your right, Rakesh Sohit from Yakshan. Congratulations to the entire team and the great launch. मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है पहले की और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की, हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, यू नो, विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड? कुड यू टॉक एंड हर्ष आल्सो, हर्ष से पूछा जाएगा कि वो अपने डैड की तरह ही, यू नो, he also has maintained his self. Okay, the character of this film, I think we got too used to these 6 packs these days. Number 1. No, ये भेड़चाल जो है. Number 2, Mirza's character was not that of a boxer. Neither. So Harsh has given me 18 months. Now, hear me out. Since we are talking about prep. 18 months before the shooting, don't get me wrong. In that he has worked on the role of first the contemporary character, which is Munish in the film. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut film. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you. You don't have a 6-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer, we'll
will satisfy you. हर्षवर्धन यहाँ मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी आपका रिएक्शन क्या था? First of all, we actually met in 2008, I think, and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirza Sahiba, and Gulzar Saab was writing a screenplay. And I was actually still in college at that time. I was 18, 19 years old. I'm 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex, and it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. You know, I mean, at least from what I've read, the interpretation of it. You know, so I was completely blown away. You know, it's one of those things that you hear it, you're like, I have to. I'd give anything to be a part of this film, you know. I mean, it's romantic, it's complex, you get to play 2 characters, it's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream, you know. So it's a dream. कितना difficult था आपके लिए इस character को निभाना? तो actually 2 किरदार हैं, एक आदिल का और एक मिर्जा का. तो first we worked on Adil a lot. Actually we worked on both simultaneously, and when I heard the story, I knew that you know, the whole film depends on my ability as a rider and an archer, because Mirza is the best, you know, and I'd never been on a horse, so it sounds very easy, but actually when you start doing it, you know, and then you know the script, so you know how sir is going to shoot it. It's not like other films where, you know, you cut to a close-up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. You know, I knew the level that I had to kind of reach to, and I moved away to Delhi for 6 months first, because you know, Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and you know, I mean, it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but you know, it was basically very difficult. Thank you, Harsh. Yes, thank you so much. Is there a question for Sayami? Yes, ma'am, in the blue. Hi, Sayami. Hi, namaste. Namaste. You both looking very stunning. Thank you so much. My question is for you and Harshvardhan both. As we just heard, Anilji said that Kapoor Parivar has given a greatest contribution to the films, and so is you. Your family is also very much connected and given a lot of contribution in industry. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त? फिल्म रिलीज पर है और बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं. मैम, प्रेशर तो मतलब I hope, at least I'll speak for myself, if I kind of have 5% of the genes that my grandmother or my aunt has, तो ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, but प्रेशर नहीं है क्योंकि दोनों हर्ष ने और मैंने we've given it our best, and when we have guidance like Rakesh sir and Gulzar sir, it makes life much easier. So we have given it our best, and we hope people like it.
मेरा सवाल हर्ष अभी आपको जवाब देना बाकी है। कौन सा क्वेश्चन? Do you feel the pressure? Yeah, no, I think, I think when you kind of believe in something so much and you work for so long with so much honesty and, you basically leave behind your life and you sacrifice so much. Eventually, when you're performing with that honesty in your heart and your mind, the audience can feel it when they watch it. And that's all you can really do. So I don't think it's very intelligent to feel creative pressure in terms of commercial expectations because you're somebody's son and all of that stuff. I feel there's nothing I can do about that. So whatever has to happen with that. मेरा सवाल गुलजार साहब से है। गुलजार साहब। Okay, we'll take that question. गुलजार साहब के लिए एक सवाल है। गुलजार साहब इधर देखिएगा। On our left. हाँ, गुलजार साहब आपने धुनों पर बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे नगमे लिखे हैं जो पहले लिखे गए बाद में धुन बनाई गई। इसमें मिर्जिया में आपने क्या अनुभव रहे, आपने किस तरह से आपकी रचना प्रक्रिया रही है? कहानी ने खुद ही गीत लिखवा लिए मुझसे। जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज था। तो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो। और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़े उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं। और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैं कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है। और बस वो उसके बाद मैं ओ के सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए। और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं की वहीं बना ली और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए। तो फिर then you have to forget, it's a two-way journey। आप अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं। क्या बात है। शंकर आपसे सवाल है। Sorry, could I please complete the answer? गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी किया आपने। नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार है हमारे लिए। एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज अ न्यू सरप्राइज एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज सीखते हैं इनसे। तो इट्स बिन मैं क्या बताऊं कि ऑल आई कैन से इज हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद अ मास्टर लाइक गुलजार साहब। क्या बात है। Thank you so much, Shankar sir. Sorry, before the next question, I must say, these are begging for my attention. Dalir Baji, you're a legend. You're back on the scene right now. जोरदार तालियां दलेर मेहंदी के लिए, please. But साथ please एक फोटो इनके जूतों के साथ मेरी ले लीजिए, मेरे दोस्त हैं मीडिया वाले। Dude, look at that bling! I love it. Can I please ask you a question because I would like to? All right. Could I please pass the mic to Dalir साहब? Thank you. आपकी आवाज सुनकर सच कहूं आंसू आ गया। आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं। तो काफ़ी सालों से 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं। पर फिल्मों में आप खुद ही जानते कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं। तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और
मैं मुंबई आया और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान भाई साहब, गुलजार साहब सब बैठे हुए थे और पहुंचा जहाँ जी मुझे क्या गाना है, तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को। तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है। लगता है कि फरिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल। तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, या फिर साईं जहूर जी की बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़िया में, बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई। फिर कहा कि आपने आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दुदियाँ कोहरे की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी, कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया। फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़िया अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह से बुलाया जा सकता है। तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब मैं गाना चाहता हूँ, तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है। और उनका जी ठीक है आप कीजिए। तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं। इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है, क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना, अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है। तो ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी माहिवाल, तो इनके ऊपर गाना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो फिर एक ही बार में माइक के सामने में खड़ा हुआ, और जो मेरे दिल से आवाज़ आई बिना सोचे समझे, उस चीज़ को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने, गुलजार साहब के बोल हैं, राकेश जी के। तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और अब मैंने गवाई। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का म्यूज़िक है, वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है। ये जो इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूज़िक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं, एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूज़िक है और पहला म्यूज़िक है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता और मीडिया का भी और जितने फैंस हैं जिन्होंने इस तरह आंखों पे बैठा लिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को, हमें, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया। My favorite man. All right, thank you. Next. From Book My Show. First of all, congratulations to you and your team for the fantastic, mind-blowing film. My question to you is, your dad just said that you are very different from him. So how much do you agree on that? Is it true that you are different from him, or what do you want to say about it? I don't think I'm the best person to decide that. You know, it's very difficult to have an opinion about yourself. But I think the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up. Or actually, I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time. You know, if as and when people get to see my films and stuff like that. Hi, Harsh. Over here, straight to over here. My question to you is, you know, stars like Aamir Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan have tweeted about your film, the trailer of your film. So how do you feel when stars speak about the film, and how much do you think that helps the film in building up the hype around the film, both of them? You know, I think at the end of the day, it just comes down to
how honest and good the film is. You know, to be honest, and I mean, there's so many incredible people working on this film. I mean, it's only my first film. I'm an unknown, but there are so many incredible people working on this film, and I think it's because of that. You know, so we're extremely thankful and that they've liked whatever they've seen so far from the film, and I hope they like the film when they see it. But it's a huge blessing, and it definitely does help. You know, and very grateful for it. गुलजार साहब, प्रशांत पांडे ETV हिंदी और उर्दू की जानिब से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लोक कथा, उसमें लोक संगीत और गीत सब कुछ नजर आ रहा है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देखें कि एक फोक जो है वो अब ग्लोबल हो चला है और बहुत ही रीच उसकी बढ़ रही है, ये जो तब्दीली आई है संगीत में या गीतों में, उसे आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देखते हैं? समझा नहीं कि उसमें तब्दीली क्या है। जो आजकल फोक ग्लोबल हो चला है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? लोगों तक पहुंच रहा है फोक गीत संगीत। नहीं, देखिए, फोक की तो एक ट्रेडिशन है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फोक की साउंड्स और फोक का स्टाइल और फोक जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें खूबी यही है कि आप हर दफ़ा अपने दौर का, अपने वक्त का नमक लगाकर उसे दोबारा पेश करते हैं, और यही काम शंकर जी ने और शंकर सामदाद तीनों ने किया है कि उसकी साउंड्स मॉडर्न हैं, उसकी साउंड्स आज की हैं, उनका स्टाइल भी आज का, उसके बावजूद आपके दौर का लगता है, बावजूद ये कि कहाँ से एको करता हुआ वो फोक आपके पास है। फोक की खूबसूरती है, भाटियाली आप जहाँ जहाँ गाते रहेंगे, जिस दरिया में भी गाते रहेंगे, साउथ में गाएंगे तब भी वही होगा, बंगाल में गाएंगे तब भी हो, लेकिन दोनों जगहों का की अपनी हवा, उसकी हवा का नाम, उसकी हवा का जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाता है, और यही खूबी है फोक की कि वो हर जगह अपने आप को लोगों के साथ अडेप्ट कर देता है। राकेश जी, अगला सवाल आपसे कि लद्दाख से लगाव आपका नजर आ रहा है इस बात पे, शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नजर आई, क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नजर आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नजर आएगा? मैं खासकर लद्दाख के बारे में मैं आपसे 2-4 महीने तक बात कर सकता हूँ, और तब बात शुरू होगी। तो मिर्जी और लद्दाख का क्या मेल है? तो जब जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है, फोक टेल है, इट्स अ लेजेंड of Mirza Sahiba, which reverberates and echoes and lands in today's time. So the legend, when you tell the story, a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirza Sahiba in my imagination, not in a period, not in the past, present or future. It is timeless. The word which I caught him in from his script and what I passed on from him to them is eternal. Ladakh has always given me that feeling. That is eternal, that nothing has touched it. And always, from day one. I was 25 years ago, I first went there for my honeymoon when I discovered it. And since then I've gone there for 25 years, every year, sometimes twice a year. But that's beside the point. It's still, I haven't even explored 10% of that land. And that's why? Because the soul of Mirza and the soul of Sahiba was somewhere, I found, can be in such a pure place. That is Ladakh. In this movie, there's a lot of folk songs, and you have blended with the modern music. How would you do this and something very different? Gulzar also told that you have blended with the modern music. Well, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are there's so many dimensions in the film. It's dynamic. There are so many emotions in the film. Similarly, our music could not have been just in one layer. If you hear the title song again and again and again,
you'll be discovering new layers every time you see. You will see, oh, this voice, oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you'll see Nuran's sisters coming here. So we want to give that a sense of, color. If you hear the title song, for example, it's celebration of Mirza. There are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, with whatever you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. When Rohini said to close our eyes, and I was just gone to trance when the last song was played. Thank you. Thank you. I'll just add to that. I requested Rohini for a very long time, in the last 2 decades exactly, it's happened to us. I've grown up in a radio generation where we used to listen to the song. Song would go through my ears, enter my heart, stay there forever. Now the generation is looking at the song. So last song I requested if we can, everybody can hear it, because the sensory organ which God has created for listening is hearing. सबसे पहले तो आपको विश ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन-कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from of certain actors. Aamir is a very big influence. I think when at least my generation was growing up in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagaan came, then Rang De Basandi came, and those were defining films for us when we were growing up. And also at that time, actors were doing so many films at one time, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirza. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Aamir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind. हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता है कि आपका कंपटीशन खुद आपके डैडी से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। हम और आप और आपके डैडी भाई लग रहे थे। All my girlfriends also say the same thing. But no, I think जब आप hopefully जब आप ये फिल्म देखोगे तो पहले 10 मिनट में आप ये सब भूल जाओगे। Well answered, Harsh. Well answered. Is there another question? Justin. So towards your left. Justin, just in time you are. Yeah, sir. Yeah. Sir, Mirza marks your return as a screenplay writer after I think almost 17 years. Sir, what took you so much time to write for films? क्या पूछा? Sir, Mirza. फिर से पूछिए जरा, क्या कितना वक्त लिया या क्या? सर आप जरा से खड़े रहिए ताकि मैं आपकी सूरत भी तो देखूं ना। ऐसे जरा बड़े खड़े होके बोलिए जैसे मास्टर लोग बोलते हैं वैसे बोलिए। Yeah, sir, with Mirza you're coming as a screenplay writer after I think almost 17 years. So sir, what took you so much time to write for films? I mean, in that way. मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली, किसी ने नौकरी दी नहीं उसे। टिल आई मेट राकेश एंड शुक्ला के इन्होंने रख लिया मुझे। नाउ आई डोंट वांट टू लीव हिज टीम। मैंने उनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। The last question. गुलजार साहब, जो मैं 35 साल से आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आप प्लीज पूरे ऑडियंस को और मीडिया को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए। कितने साल से बोल रहा हूँ मैं?
ऑलमोस्ट 32 years, 33 years, 34 years, Yeah, 34 साल पहले मैं आपके घर आया था। वो 7 दिन बन रही थी, मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई, आज तक नहीं बनाई। इसका जवाब चाहिए मुझे आज। चलो थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आपने मेरे बेटे की दिल्ली बना दी। थैंक यू। अच्छा देखिए, कई बार कुछ जवाबदेही सवाल, कुछ पाप, कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते है ना। और गवाह आपके सामने बैठे हैं। हर्ष से पूछिए, शाम को मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जो मेरे बेटे के साथ कर रहे हो। मैं शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे। अरे उन्होंने कर दी है, देख लीजिए सबके सामने। लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था, मैं somehow I kept missing him कहीं ना कहीं। अब I miss him even now when I don't see him. That missing is separate. लेकिन casting में I kept on missing him because I was never a producer and नौकरी करता था as a director also, तो दूसरों के लिए बनाता था। तो somewhere I kept, बल्कि वो ब्रिंज तक पहुँच के भी वो मिस कर गया मैं। I wish you had employed me once. I just want to add to this. It's a very very serious topic. और मेरे से पूछा जाता है ये भी कि आपने सोनम के साथ 2 फिल्में की हैं, हर्ष के साथ कर ली है, आप अनिल कपूर के साथ कब करेंगे? तो जैसे ही वो 18 साल के हो जाए एक फिल्म बना देंगे। I don't know what mine is. He has to be an adult first, then I'll make a movie. राकेश जी, आपने जैसे कहा कि मिर्जा की जो मिर्जा सोहेल साहिबा जो तीर तोड़ देती है, उसका जवाब आपने कैसे दिया इन द फिल्म? और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली to take up fantastic, absolutely amazing. But then you had it in mind कि you wanted a newcomer और हर्ष आपके ध्यान में था पहले, वो जर्नी के बारे में कुछ बताओ। हम लोग सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, ये मेरी 5वीं फिल्म है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में। कई बार सोचते हैं दिस वर्ड कॉल्ड आई डिड दिस, आई रोट दिस, आई डायरेक्टेड इट, आई कास्टेड इट, आई थॉट ऑफ दैट, दिस इज माई ट्यून, ऑल दैट। नॉट रियली। I feel that this is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that, and that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot, and the small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, lot of noise. My instincts took me to his door. He lives just 30 meters away from me, but it took me 35 years. My instincts took me to both of them, and destiny brought us together. It was instincts, nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to speak tonight by giving those reasons because I feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met. So there's a lot more than that. I wish I was able to explain it to you better someday. One of these days in my office, over coffee, over a drink, whatever. My question to Gulzar Saab and Rakesh is, how has tragedy influenced the greatest of love stories and turned them into epics, whether it's Romeo and Juliet, Heer Ranja, and now it's Mirthia, and many more. But do you think tragedy has influenced to make love stories kind of, great, yeah. अच्छा पूछ रहे हैं आप या राकेश जी से? Yeah, both of you, I mean. दोनों कैसे? Then you please, as a screenplay writer, yeah, you.
influenced the greatest of love stories? Whether it is Romeo. So when it's a happy ending, it's not so much fun for our friend. Yeah. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो मुझसे भी पूछे गए कि ट्रेजेडीज क्यों है, सारी ट्रेजिक क्यों है जो लव स्टोरीज है, और या वही क्यों मनाई जाती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है। खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और खत्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है। लेकिन अगरबत्ती अगर जलाए तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी। That's the difference between a happy ending and a sad ending. ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की जरूरत तो नहीं मैं समझता। वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना। लैला मजनू की कहानी ले लीजिए, क्या फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से। ये लॉस नहीं उठाया है, लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए तो यही होगा। और ये तीसरा भी दुकान पर बैठता है, तो वर्क आउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योरसेल्फ। वो बस अब आप समझ गए कि जो क्वेश्चन गुलजार जी करना। Ma'am, I'm so sorry. We've actually run out of time. और बहुत भूख लग रही है हम सबको। बस एक सवाल गुलजार जी से करना है। गुलजार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलजार साहब की लिखी है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके कि आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है लिखने के लिए? लेकिन इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल ये है कि बड़ी बात है और सादा ज़बान, दो सवाल में 2 हिस्से हैं कि बड़ी सादा ज़बान और बड़ी बात। सादा ज़बान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की ज़बान है, जिस ज़बान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी ज़बान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए। और मुझे कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूँ। कोशिश यह है कि जिस ज़बान में फिल्म लिखी जाती है, जिस ज़बान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी ज़बान में बात की जाए जैसे इस फिल्म के भी है। और ये कि जो ज़बान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा ज़बान में वो ज़बान है जो आपस में बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़बान वही रहती है ना। बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाज़ा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं जो बात एक्सपीरियंस है या जिस एक्सपीरियंस से गुजरता हूँ उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूँ जो महसूस करता हूँ। अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही वक्त इज द बेस्ट। तो बस उतनी सी बात हो, बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो और किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता है। और वक्त के साथ ही हमें चलना चाहिए। I am very grateful to all our friends from the media. I know you need more pictures and we'll try and do that. But thank you so much. और जाने से पहले, before I ask my wonderful cast and crew to take a bow once again as we say bye bye to you.